So we are doing our chapter 5, periodic classification of elements. Okay, in that last time we have completed till achievements. Okay, just read it everybody. We are just doing the limitation of Mendeleev classification on page number 84. Okay, take out your page number 84. Now we are going next. Electronic configuration of hydrogen resembles that of alkali metals. Alkali का मतलब क्या होता है पता है? In outermost orbit means generally they are converting into the plus sign. Like alkali metals, hydrogen combined with halogens, oxygen and the sulfur to form compounds having similar formula or shown in this example. मतलब क्या होता है? Remember simply that plus is going to combine with the minus charge element. Okay, if hydrogen has a plus one, then what it will do, it will going to get to react with the minus one. So minus one किसके पास होता है? क्लोरीन के पास होता है, क्लोरीन के पास होता है, ब्रोमीन के पास होता है, आयोडीन के पास भी होता है, because they all are halides. So mostly hydrogen अकेला है H plus, it is going to combine with the chlorine. Similarly, it has to combine with the sulfur, then it combine with the H2S. and NaCl, Na2O and Na2S. तो आपको पता है कि Na+1 होता है, O-2 होता है. If they want to combine, it will form Na2O. Okay? ये मैंने पहले क्लास में सिखाया था. So on the other hand, just like halogens का मतलब क्या होता है? Chlorine, fluorine, bromine and iodine are the halogens. Hydrogen also exists as a diatomic molecules and it's combined with metals and non-metals to form covalent compounds. So halogens कैसे होता है? Cl2 होता है. Okay, तो halogen diatomic हो सकता है. तो like halogen, hydrogen also can be a diatomic, means it can also form H2, that will become the diatomic. Okay, and it also capable to react with the metals as well as non-metal. Metals कौन सी होती है? जो प्लस चार्ज होता है वो, और नॉन मेटल मोस्टली हैविंग द नेगेटिव चार्ज. So sodium, it is sodium what? Sorry, hydrogen is possible to react with the metals as well as non-metals. Now certainly no fixed position can be given of hydrogen in the periodic table. This was the first limitation of Mendeleev periodic table. So Mendeleev ने ये क्लियर नहीं किया कि उसने हाइड्रोजन को कोई प्लेस नहीं दी, क्योंकि उसको लगता था कि वो सबके साथ रिएक्ट कर सकता है. That's why he got confusion and he has not given any place to the hydrogen in the periodic table. He could not assign a correct position in hydrogen in his table. तो उसको लगा ही नहीं कि वो कौन सी प्लेस पे करेक्ट फिट होगा. Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. तो periodic classification Mendeleev ने दे दिया, उसके बाद आया isotope of hydrogen. As you remember, the isotope of hydrogens are protium, deuterium and the tritium. If you remember last year we have done. The isotopes of hydrogen is protium, deuterium and tritium. 1H1, 1H2 and 1H3. Here the number of neutrons are different in these three isotopes. So let's recall the isotopes of elements have similar chemical properties but different atomic masses. Isotope किसको बोलते हैं? कि उसको सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है पर उसका एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है एटॉमिक मास एंड ट्रिटियम का 3 एटॉमिक मास होता है. केमिकल प्रोपोजिशन में हाइड्रोजन का H सेम ही होता है इन शॉर्ट. ओके, सिमिलरली आपको एक्टिविटी में दिया है द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. with 70 chlorine 35 and 70 chlorine 35. So that what number of neutrons are different but chemical properties are same. Thus isotope of all elements pose a challenge to Mendeleev in periodic table.
इसकी वजह से क्या होता था, मेंडेलीव जो आइसोटॉप्स है उसको प्रॉपर, आइसोटॉप है जिसके पास जो भी एलिमेंट के पास आइसोटॉप्स होता है उसको वो प्रॉपरली प्लेस नहीं दे पाता था, तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई। ओके, another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next। तो मतलब वो मीन्स एक जो फिक्स जो पैटर्न जा रही है उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो वो उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो उसको प्रॉपरली उसको समझ नहीं पा रहा था। Atomic mass do not increase in a regular manner in going from one element to the next element. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between these two elements, especially when we consider the heavier element। तो जब हम heavier element की बात करते हैं तो उसको उसके दूसरी लिमिटेशन हुई के कि वो प्रॉपरली एलिमेंट है उसके बीच में कितने एलिमेंट आएंगे इन फ्यूचर ऑल्सो, he cannot able to decide those things। So there are two limitation। One, the element having the isotopes could not be uh, make the space in the periodic table, उनको वो स्पेस नहीं दे पाया, कहाँ पे है वो नहीं कर पाया। और सेकेंडली जिसका एटॉमिक मास, जो दो एलिमेंट है उसके अगर एटॉमिक मास से बहुत सारा डिफरेंस है तो उसके बीच में कितनी जगह छोड़नी है, that we cannot recognize। These two limitation are there of the Mendeleev। समझ में आया सबको थोड़ा? यस मैम। हाँ मैम वो नोबल गैस क्या होते हैं, मतलब जो नोबल के नोबल गैस क्या होता है, केमिकली वो इनएक्टिव होते, एक्टिव नहीं होते। मतलब जैसे कि हीलियम, उसकी आउटर मोस्ट फुल होती है, जैसे कि नियॉन एंड आर्गन कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट्स होती है, तो वो कुछ नहीं करते, उसको बोलते हैं नोबल गैस। दूसरा होता है हेलोजन्स, दूसरा होता है हेलोजन्स। हेलोजन्स में क्या होता है, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्लोरीन जैसा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, उसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन्स का एग्जांपल है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। Chlorine, fluorine, bromine and iodine are the halogens। Okay, now next, making order out of course the modern periodic table। तो कैसे उन्होंने उनको ऑर्डर दिया है। So in 1913 Henry Moseley saw that the atomic number that is symbolized as Z of an element is more fundamental property than its atomic mass। जो हम एटॉमिक नंबर को Z डिनोट करते हैं उसके पास मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है कंपेयर टू द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से जो हम जानते हैं उससे ज्यादा हम एटॉमिक नंबर से विल गेट द इंफॉर्मेशन मोर। अकॉर्डिंगली Mendeleev's periodic laws was modified and atomic number was adopted as a basis of modern periodic table, and the modern periodic laws can be stated as follow। तो उसने जो भी किया है वो मॉडर्न पीरियड टेबल से कुछ कुछ लिया है, तो वो क्या क्या लिया है और वो क्या था दैट वी आर डूइंग। सो मॉडर्न पीरियड लॉस क्या है दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ। प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ मैम ये जो लिमिटेशन ऑफ रेडियोस क्लासिफिकेशन है ना वो कैंसिल हो चुका है, तो आप कैंसिल वाला टॉपिक करवा रहे हो? अभी के लिए देख लो, क्योंकि क्या होगा पता है, ये आपको पूरा पीरियड टेबल समझना भी पड़ेगा। ओके, इसलिए समझ लो एक बार, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी। ये तो है ना मेकिंग ऑर्डर ऑफ आउट ऑफ वाला है ना? यस मैम। हाँ यस मैम। चलो, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिकली अगर उसको फंक्शन करना है, मतलब अरेंज होना है, तो उसके एटॉमिक नंबर जानने जरूरी है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, सोडियम का 11 है, ऑक्सीजन का 8 है, वो एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। ओके, let's recall the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and the number increased by 1 is going from the element to the next element। तो ये हमको पता है कि हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखी है, राइट, और वो सर्कल वाला भी ड्रॉ किया है ना।
तो उसके डिपेंड Yes, ma'am. हाँ, तो उसके डिपेंड होता है कि कितने प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे. एज यू नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन द वन एलिमेंट. जैसे कि हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. तो सिमिलरली कोई भी और ले लो, मतलब कि सोडियम का मतलब नाइट्रोजन ले लो, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. तो 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स आर 7 protons and 7 electrons are present in this element. So elements when arranged in order of increasing atomic number lead us to the classification known as the modern periodic table. तो अगर हम उसको increase atomic number पे arrange करते हैं so it will known as the modern periodic table. Okay. Now prediction of properties of element could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. तो कैसा है? Now here in on your page number 86 you can see the atomic numbers how they are arranged. Okay, so first is hydrogen. देखो ऊपर कॉलम में स्टार्टिंग के ग्रुप नंबर में लिखा है, राइट. उसी लाइन में नेक्स्ट लिखा है कि हीलियम, राइट. तो प्रॉपर्ली अरेंज 1 2, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाओगे तो 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, फिर स्पेस दी है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मीन्स क्या बोला है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल एस्टैब्लिश किया गया है. समझ में आया कैसा है? इट इज अ 1 to 10. No, ma'am. देखो फर्स्ट नंबर, देखो ग्रुप नंबर में फर्स्ट है, फिर वर्टिकली जाना है, सॉरी हॉरिजॉन्टली जाओ, सीधे जाओ हॉरिजॉन्टली, तो उसकी स्ट्रेट लाइन में आप आगे जाओगे तो बीच में स्पेस है एंड नेक्स्ट है 2. समझ में आया? फिर नेक्स्ट लाइन में जाओगे, फिर थर्ड एंड फोर्थ, अगर बीच में कोई नहीं है तो उसकी स्पेस रखी गई है, राइट. देन थर्ड 5 6 7 8 9 10 तक दिया गया है. मिला आपको? ऐसा समझ में आया? हीलियम आपको मिला सबको? उसका ग्रुप होता है 18. वो 18 ग्रुप में होते हैं और 18 ग्रुप के जो भी एलिमेंट है ना वो सारे बोलते हैं हम नोबल गैस. तो हीलियम इज अ नोबल, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, दिस ऑल आर द नोबल गैसेस. फिर ग्रुप 17 में जाओ तो 17 ग्रुप जो भी है वो सब जाता है, वो हेलोजन ग्रुप बोलते हैं हम लोग. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, दिस आर ऑल द हेलोजन ग्रुप्स, जिसकी सब में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कम होए ऑक्टेट खत्म करने के लिए. तो ये सब कुछ हेलोजन ग्रुप में आता है. नेक्स्ट इज ऑक्टेट ग्रुप, अरे नोबल गैस वाला ग्रुप. दिस ऑल आर गिवन. हमने अभी तक पढ़ा है जो 1 to 20 तक, मतलब 1 to 18 तक पढ़ा है, राइट. बीच में जो ग्रुप्स है उसको अलगली क्लासिफाई किया है 3 to 12 ग्रुप्स. ओके. ओके. देखो ग्रुप्स आर टोटल, ग्रुप्स होते हैं टोटल 18 होते हैं और प्रेयर्स होते हैं 7 प्रेयर्स आर देयर एंड ग्रुप्स आर 18 ग्रुप होते हैं. ओके, दैट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर. बाकी सब अभी नहीं करना है. मेटल्स आपको दिखाए गए हैं येलो में, तो मोस्ट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर येलो में है. और जो मेटेलॉइड्स का मतलब क्या होता है, उनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. That's why they are called as the metalloids. Okay, so boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are the metalloids. यह भी याद नहीं रखना है, but just for your information is given. Okay, चलो. As we can see, the modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of elements in the modern periodic table are depend. तो किसके बेसिस से उन्होंने अरेंजमेंट की है, कहाँ पे रखे हैं, that now we are going to discuss. तो फर्स्ट हमें डिस्कस करना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को हमने कैसे रखा है, बराबर.
position of all the elements in the modern periodic table. So first, the modern periodic table has 18 vertical columns. तो आपने देखा दिया गया आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कॉलम देखो, वर्टिकल और अगर हॉरिजॉन्टल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी के लिए, क्योंकि वो ऐसे डिनोट किया गया है। इतना याद रखो, 18 ग्रुप्स आर देयर एंड पीरियड्स आर ऑफ 7, बराबर? शायद समझ में थोड़ा सा यस मैम। ओके, खाली इतना याद रखना है कि 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड 7 पीरियड्स आर देयर। Okay, now you will find that all these elements contain the same number of valency electrons. Similar, you will find that the element present in any one group has the same number of valence electrons. तो जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में चले जाओ, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं 17 ग्रुप में, देख लो 17 ग्रुप में फ्लोरीन की बात करें तो उसका क्या होगा, 27 होगा, राइट? तो उसकी वैलेंसी होगी -1। अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का भी वैलेंसी होगा Cl-1। अगर आप ब्रोमीन में भी जाओगे तो उसकी वैलेंसी होगी -1। आयोडीन की भी -1 होगी, एसिटोन की भी होगी -1, एंड जो टेनेसिन है उसकी भी होंगी वैलेंसी -1 ओनली। सो आप कोई भी ग्रुप में जाओगे तो जिसकी फर्स्ट की वैलेंसी है ना, उतनी ही नीचे सबकी वैलेंसी होंगी, सेम वैलेंसी। Okay, if we are going in the group, for example, elements chlorine belongs to the group 70. Both belongs to the group 70. And how many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost cells? So mostly 7 electrons are there in their outermost cells. Hence we can say that groups in this periodic table signify an identical outer cell electronic configuration. ओके तो सब जैसे कि फ्लोरीन का होता है 2,7 और क्लोरीन का होता है 2,8,7. So all these elements have the same number of electrons in their outermost cell. Okay. On the other hand, the number of cells increase as we go down to the group. जैसे आप नीचे जाओगे तो एक सेल इंक्रीज होता जाएगा, but in outermost orbit same electrons would be there, and that is an anomaly when it comes to the position of hydrogen, because it can be placed either in group 1 or in group 70 in the first period. Can you say why? हाइड्रोजन के पास दोनों कैपेसिटी है, का तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, का तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो क्यों हमने उसको 17 में नहीं रखा? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है, क्योंकि ये सबके पास ऐसी नहीं होती प्रॉपर्टी, क्लोरीन फ्लोरीन के पास नहीं है, दैट्स व्हाई it has been placed separately in the first group only. Okay, चलो ओके मैम। मैम अभी हाँ। स्कूल भी आना है, साइकिल से एंड कर दो ना। क्या बेटा? अभी तो मुझे साइकिल से स्कूल आना है, अभी एंड कर दो ना, टाइम पे नहीं आ पाऊंगी। ओके ओके ओके।